Good afternoon, everyone. My name is Ankit Namdev. So in morning session, Mr. Pulki sir, covered artificial intelligence, machine learning, and deep learning, and their algorithms. So I hope everyone understood well. And in this session, I am going to cover some practical applications of face recognition and object recognition. So before starting the face recognition, object recognitions, and the algorithm and coding, I would like to give you an example, what are the applications and why we do study these kind of algorithms and what is the real applications of this. So I think फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज का देखेंगे कि हम फेस रिकॉग्निशन और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन जो एप्लीकेशंस होती हैं वो रियल वर्ल्ड में कहाँ पर होती हैं और हम इस कोडिंग को हम क्यों पढ़ें, राइट? तो हमने देखा होगा एग्जांपल में, जैसे कि हम फेसबुक सभी यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सभी का अकाउंट होगा फेसबुक में। तो जब हम उसमें कोई भी पोस्ट कोई भी इमेज अपलोड करते हैं तो उसमें एक ऑटो टैग का ऑप्शन एक आता है, राइट? When we use when everyone has account on Facebook, and when we upload an image over our account, so we get a fun functionality or feature for to tag this image. So this is nothing but a or example of face recognition and object recognitions. So let's move. Our today's in this session agenda is what is computer vision, and the next is to how a computer reads an image, and third one is what is OpenCV, and basics of OpenCV and image detections using OpenCV. So first of all, I would like to explain that what is computer vision. सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर विजन होता क्या है। जब हम बात करते हैं, जब हम सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन है, स्टैच्यूज है, बिल्डिंग्स हैं। तो जब हम जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हम डायरेक्ट इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, राइट? पर जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई की, तब यहाँ पर हमें अपनी मशीन्स को हमें ट्रेंड करना होता है टू रिकॉग्नाइज और टू डिटेक्ट the objects, which kind of object is. So the algorithms basically used to train our machines simply stand for computer vision, and in computer vision, we basically trained our machines and to detect these objects. So how a computer reads an image. आप यहाँ पर देख रहे होंगे, फर्स्ट यहाँ पर हमारी एक इमेज है, दिस इज नथिंग बट अ टाइम स्क्वायर। बट जब एक ह्यूमन इस इमेज को रीड करता है तो हम सिंपली इसको, मैंने अभी बोला कि दिस अ टाइम स्क्वायर इमेज, राइट? बट जब हम किसी मशीन्स को या अपने किसी कंप्यूटर को जब हम इस इमेज को ट्रेन करते हैं या उसको इस एल्गोरिथम पर कोडिंग करते हैं कि वो इस इमेज को डिटेक्ट कर पाए कि ये इमेज एक्चुअली किस चीज की है, या इसमें कौन कौन से इसमें सिंबल्स हैं, या स्टैचू है, या ह्यूमन है, या बिल्डिंग्स हैं। तो इसमें एक फ्लो होता है, जो भी हम कोडिंग करते हैं और हम एक इमेज रिलेटेड या कंप्यूटर विजन रिलेटेड जब भी हम एक कोई प्रोग्राम बनाते हैं अपने मशीन को ट्रेन करने के लिए, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारी इमेज होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट आर इमेज इनटू RGB फॉर्मेट। RGB नथिंग बट रेड, ग्रीन एंड ब्लू। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट आर इमेज, our digital image or video in RGB format, then this image, then this color bar, it means RGB converted into matrix or some array. This arrays, each color having its own array. Okay, array nothing but a matrix, and this matrix having a decimal number from 0 to 255. So after converting this
this image to RGB format or matrix, we will get three different frames or three different channels. These channels having number of rows and number of columns. For example, image which we have converted or which we have recognized. First of all, we will recognize our image or convert into n-dimensional or 3D binary array or matrix or three channels. So it is having B cross A cross 3. What does it mean? B cross 3 cross A. It means that B stands for number of rows and A simply number of columns, and 3 simply stand for there are 3 frames. For example, our image is black and white. If our image is black and white, so the result would be B cross A cross 1. Okay. Now, after converting our colored image or black and white image to n-dimensional binary array, there is some tools basically used to convert or recognize this image. There are a number of tools available on the internet, and these are open source, and everyone can use these tools. And by using these tools, we can implement the coding of AI MLDL. First one is OpenCV, Scikit-Image, PIL, Simple ITK, and Mohatas, SciPy. So in this session, I will cover the coding, or I will cover the algorithm and implement face recognition, object recognition by using OpenCV. So now, what is OpenCV? OpenCV, as I earlier told that there are a number of image processing tools. So obviously, OpenCV is a image processing tools, but this is a library. Have you anyone heard about library OpenCV? किसी ने ओपन सीवी का नाम सुना हुआ है लाइब्रेरी? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, यस। सो मेरा क्वेश्चन है कि किसी ने ओपन सीवी का नाम सुना है, या किसी ने कोडिंग किया हो, या इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ओके, सो ओपन सीवी हमारी एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली हम अपने जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज में इस लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना होता है ना? बेसिकली अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइब्रेरी क्यों, राइट? हम जब कोडिंग कर रहे हैं तो वहां पर लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस क्या है? जब हम फॉर एग्जांपल यदि हम लाइब्रेरी का यूज नहीं करते हैं और हम सिंपल अपने कोडिंग से हम जब किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए या इमेज प्रोसेसिंग के लिए जब हम कोई भी कोड या प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तब हमें उसकी कोडिंग स्क्रैच से स्टार्ट करना होती है, राइट? बट यदि हमें कुछ ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स मिल जाएं, ना, छोटे छोटे से हमें कोड्स मिल जाएं या फंक्शंस मिल जाएं जिनको हम कॉल करके या जिनको हम इम्प्लीमेंट करके हम अपने एप्लीकेशन को बिल्डअप कर सकें, टू शॉर्ट आउट फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड और क्रिएट प्रोग्राम, we prefer some libraries, supporting libraries or tools. For image recognition or face recognition, the most popular library in the world is OpenCV, right? So आज हम जो यूज करेंगे OpenCV लाइब्रेरी को यूज करके हम प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर जब हम OpenCV लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो इसका भी एक अपना स्टैंडर्ड होता है, एक अपना फ्लो होता है। When we use OpenCV library, so there is some its own functionality and process to convert image into its certain parameters or different channels and arrays or matrix. So as you can see that what is OpenCV? So OpenCV is simply a library of programming function mainly aimed at real-time computer vision. As I earlier told that what is the OpenCV? Now the OpenCV, first of all, your OpenCV convert image, whatever the size, whatever the format of image like JPG and other formats,
first of all, image convert into numpy. Now what is numpy? As I earlier told that first of all your image convert into its matrix. So matrix, this is nothing but a numpy. This is a numpy n dimensional array. Once your image is successfully converted into OpenCV to numpy array, now this matrix or this data or channel, you can integrate with another tool maybe matplotlib, and so many tools are there. As it depends on your operation, or it depends on your application, you can simply integrate this numpy n dimensional array as per your application or as per your operation which you want to do perform. Now install OpenCV library in Python. So in this session, इस सेशन में हम कुछ कोड्स को भी हम देखेंगे कि कोडिंग कैसे होती है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज द प्रोसेस टू इंस्टॉल दीज लाइब्रेरीज. हम इस सेशन में लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करना है, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, और उनसे कोडिंग हम स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करते हैं, वो सारा हम इस सेशन में कवर करेंगे. So you can see that in command prompt, just type pip install OpenCV Python. So this is a command. ये एक कमांड है जिससे हम अपने जो भी हमारा कंप्यूटर है उसमें हम OpenCV लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, राइट. ऑब्वियसली बात है, जब हम अपने OpenCV लाइब्रेरी को यूज करना है तो उसे इंस्टॉल करना होगा, है ना. बिफोर दैट आज जो हम कोडिंग करेंगे वो हम पाइथन में करेंगे, राइट. क्योंकि पाइथन के अपने एडवांटेजेस होते हैं. देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड लाइक C++, जावा, राइट, एंड पाइथन. सो जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, AI, ML, DL, okay, so these all higher end technologies, and in these technologies are old languages like C++ and Java having some challenges for development point of view. So by to shortcoming these errors or these complexity, Python replace these complexity and having very जब हम पाइथन में कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्ट आउट हो जाती हैं, राइट. जैसे मैं एक छोटा सा एक हेलो का मैं एग्जांपल दूंगा. यदि हम वही कोड C++ या जावा में बनाते हैं तो वो लेंदी होता है एज कम्पेयर टू पाइथन ना. पाइथन में हम सिंपल एक स्टेटमेंट में, एक सिंटेक्स में हम उस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये सारी हायर एंड टेक्नोलॉजी हैं जहाँ पर हमें काफ़ी बड़े प्रोग्राम क्रिएट करना होते हैं, तो वहाँ पर पाइथन हम यूज़ करते हैं. तो आज इसलिए हम सेशन में पाइथन को प्रेफर कर रहे हैं. इसमें हमको OpenCV लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है. तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर हमको कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है. मेरी स्क्रीन विजिबल है? कमांड प्रॉम्प्ट विजिबल है स्क्रीन मेरी? हाँ सर. यस सर. ओके. सो देखिए, अभी मैं जो प्रोसेस जो फॉलो करने वाला हूँ, मैं सिंपल OpenCV लाइब्रेरी को इंस्टॉल करूंगा. सिंपल pip install OpenCV _ Python. देखिए, अब ऑलरेडी मैंने OpenCV लाइब्रेरी को ऑलरेडी मैंने अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया हुआ है, तो दैट्स वाई यहाँ पर मैसेज आ गया. अदरवाइज जब आप इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है. देन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. नाउ पाइथन कोड. आज जो हम कोड देखने वाले हैं, जिनका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच. सो फेस डिटेक्शन, स्माइल डिटेक्शन, आई डिटेक्शन, एंड कैट फेस डिटेक्शन. So these are applications, different applications. So we will study.
and Python code for video. So let's start coding from first code of face detection. Now, what you will have to do, first of all, you have to install Python. Just go to the Python website. Yeah, so you can simply download from here. Go to the download and just install the Python. तो आई हैव ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर पर लैप पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, तो आई एम स्किपिंग दिस स्टेप. Sir, your voice is breaking. हेलो, मैंने ऑलरेडी पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ. Then what you have to do, you have to install some IDE tool. IDE simply stand for environment for development of code of Python. So there are a number of tools available on internet. You can choose as per your for as per your practice. So the tool which I use is a PyCharm. So just go to the PyCharm. So this is a PyCharm, and just you can go and download this PyCharm tool for development of codes. And why IDE tools are needed? IDE tools, basically give our environment to run the code, to run your code or test your code as well. Okay. So just go to the download link and you can download it and install on your system. So I am skipping this step because I already installed this PyCharm. So this is a PyCharm. How does it looks? So आप देख सकते हैं कि मैंने PyCharm जो अभी उसमें ओपन किया हुआ है. जब भी आप प्रोग्रामिंग अपने एंड पर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको सबसे पहले यही टूल्स इंस्टॉल करना है. जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको ओपनसीवी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर, आपको पाइथन इंस्टॉल करना है. देन आपको ओपनसीवी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, ऑलरेडी कमांड मैंने उसमें बताया हुआ है. देन आपको आईडी टूल भी, आप एनाकोंडा यूज करते हैं, एनाकोंडा आप यूज कर सकते हैं, पाइचार्म यूज कर सकते हैं. These are the popular IDE tools for development Python code. Now I am going to open first code for face detection. जैसे कि आप कोड देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ था, उसको मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो हम कोडिंग करते हैं सिंपल. अब इस देखिए, अब मैं इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ. Wait a moment. Right. देखिए,
मैं आपको रिजल्ट पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको, हेलो, मैं आपको कोड, इसका रिजल्ट पहले दिखा देता हूँ ताकि आप कोड को समझ पाएंगे कि हमने इसमें पूरे प्रोग्राम में, पूरे कोड में हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। ये जो हमारा कोड है ये फेस डिटेक्शन का है। आप इसमें जो भी इमेज इंपोर्ट करेंगे उस इमेज में ये फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसमें मार्किंग कर देगा, एक रेक्टेंगल प्लॉट कर देगा, राइट। तो ये हमारा एक सिंपल कोड है। अब हम इस कोड के फ्लो को समझते हैं ना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं वो हमारी लाइब्रेरी है ओपन सीवी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंपोर्ट द ओपन सीवी लाइब्रेरी, import cv2, then the syntax is a face cascade is equal to cv2 dot cascade classifier. Now what is the application of cascade classifier? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कोड में हम किसी भी इमेज, जो भी हम इमेज को इंपोर्ट कर रहे हैं उस इमेज में फेस को आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो हम किसी भी इमेज में फेस को यदि आइडेंटिफाई करना है तो हमें एक फेस के कोऑर्डिनेट्स हमको पता होना चाहिए। फेस के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, इससे मतलब हमारा ये होता है कि जो भी हमारा इमेज के जो भी हमारे, हेलो, यस सर, हेलो सर थोड़ा सर आपकी स्क्रीन विजिबल तो है सर, लेकिन कोड अच्छे से दिख नहीं रहा है सर। थोड़ा मैक्सिमाइज कर देंगे सर थोड़ा सा। मैंने पिन भी किया हुआ है लेकिन फिर भी उतना इफेक्टिवली नहीं दिख रहा है, हालांकि मैं मैग्नीफायर भी यूज कर रहा हूँ साथ में। मैं देखता हूँ यहाँ से जो हो सकता है। फिर आप कंसोल पर नहीं देख पाएंगे ना। अच्छा, ये केवल मुझे दिक्कत आ रही है, सबको ऐसे ही दिख रहा है? प्लीज कोई रिप्लाई कीजिए। एक मिनट रुकिए, अब देखिए, अब ठीक है, इज इट राइट? अब विजिबल है? Sir, it is not a proper. हेलो, विजिबल है Sir, it is not a proper visible screen. एक्चुअली इससे ज्यादा मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ, है ना। अदरवाइज फिर जो हम इसके रिजल्ट्स आएंगे ना, जो नीचे आप बॉटम में देख रहे होंगे कंसोल, यहाँ पर मैं वो आपको करेक्ट दिखाई, फिर वो आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। ओके सर, ओके कंटिन्यू। ओके सर कंटिन्यू। आपको कोड में जहाँ पे डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूंगा इंपोर्ट। हमने सबसे पहले ओपन सीवी लाइब्रेरी जो हम यूज कर रहे हैं फेस को रिकॉग्निशन करने के लिए, वो हमने इंपोर्ट किया। देन सेकंड, यहाँ पर हमारा जो इंस्ट्रक्शन है cv2 डॉट कैस्केड क्लासीफायर। Cascade classifier. Now, what is the application of this statement cv2 dot cascade classifier? Right? The application is that जब हमें किसी इमेज में किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फेस को डिटेक्ट करना है तो हमें उस फेस के कोऑर्डिनेट्स या उस फेस की हमें फंक्शनैलिटी या फीचर्स हमें पता होने चाहिए, राइट। पता होने चाहिए, दैट मीन्स हमें उस एक कोई ऐसी फाइल्स हमें इंपोर्ट ऑल्सो हमें इंपोर्ट करना होगी जिस फाइल में फेस की फंक्शनैलिटी या फेस के फीचर्स ऑलरेडी हों, राइट। तो यहाँ पर जो कैस्केड क्लासीफायर है स्टेटमेंट है, इसमें हम .xml फाइल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस XML फाइल को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। इस फाइल में फेस की फीचर्स या फेस के फंक्शनलिटीज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, यदि मुझे स्माइल को डिटेक्ट करना है ना, तो मुझे एक ऐसी XML फाइल को इंपोर्ट करना होगा जिसमें स्माइल की फंक्शनलिटी हो, इसमें स्माइल के फीचर्स हों। नाउ अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, यदि मुझे आईज को डिटेक्ट करना हो तो मुझे ऐसी XML फाइल को इंपोर्ट करना होगा जिसमें आईज की फंक्शनलिटी, आईज के फीचर अवेलेबल हों। तो यहाँ पर अभी मैंने जो फाइल इंपोर्ट की हुई है वो है फेस को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। अब नाउ
क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइल्स यदि आप अपने एंड पर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको ये फाइल कहाँ से मिलेगी, है ना। तो ये कुछ फाइल्स होती हैं जो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं और ओपन सोर्स हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हम ओपन सीवी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो हमको जाना होगा ओपन सीवी गिटहब। गिटहब एक कम्युनिटी है जो हमें सोर्स कोड और उसके जो सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो हम सिंपल इनकी वेबसाइट पर जाके जो भी हमारी एप्लीकेशन है या जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कोड में उन फाइल्स को इंपोर्ट करके एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने सिंपल इसमें URL टाइप किया है ओपन सीवी गिटहब, देन मुझे उनके वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पर देखेंगे डेटा, एक डेटा नाम का फोल्डर है, इस पर हमको जाना है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ फाइल्स हैं। तो हमें जो फाइल इंपोर्ट करना है या जो मैंने जो फाइल इससे यहाँ से यूज़ की हुई है वो फेस को डिटेक्ट करने के लिए है। सो वो हमारे हार कैस्केड ये टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं उस पर हमको जाना है। देन आप यहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंट हमारी XML फाइल्स यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना। आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया कि जो भी आप प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से XML फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आई के लिए मिल जाएगा, फ्रंटल फेस, तो डिफरेंट जो अभी मैंने इंपोर्ट की हुई है फाइल वो यहाँ पर है हार कैस्केड स्लैश फ्रंटल फेस डिफॉल्ट .xml। अब इस फाइल को डाउनलोड करने का भी एक तरीका है। इस फाइल पर आप सिंपल क्लिक करेंगे, देखिए ये मैंने फाइल को ओपन किया हुआ है। तो ये हमारी हार कैस्केड फाइल है ना। अब ये फाइल या तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं या तो ऑलरेडी जो डेवलप्ड है ना यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये फाइल HTML से ही सिमिलर है ऑलमोस्ट। इसको डाउनलोड करने का जो वे है वो सिंपल हमें रॉ पर जाना है, रॉ पर जाएंगे, ये फाइल आपकी यहाँ से ओपन हो जाएगी और सिंपल आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके सेव एज आप करेंगे तो जिस भी लोकेशन पर आपको डाउनलोड करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं .xml यहाँ पर आ गया ना, जो भी फॉर्मेट आपका जो डाउनलोड होगा वो .xml होगा। तो यहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करके मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी फाइल को मैंने सेव कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं हार कैस्केड फ्रंटल फेस .xml। तो ये हमारी एप्लीकेशन हो जाती है कैस्केड क्लासीफायर की। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फाइल हमको यहाँ से इंपोर्ट करना होती है। आप यहाँ से देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने पूरा एड्रेस दिया हुआ है ना। यहाँ पर मैंने जो मेरी फाइल का जो एड्रेस है वो मैंने पूरा दिया हुआ। यहाँ से मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो फाइल को अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट किया हुआ है ना। अभी भी राइट होगा और इसके पहले जो था वो भी सही था। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा img = cv2.imread। अब देखिए आपकी जो भी इमेज है ना, जो भी आपकी सोर्स इमेज है उस इमेज को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए जो हमारे पाइथन में जो सिंटेक्स यूज होता है वो हमारा होता है cv2.imread। देन आपकी जो भी इमेज है ना उस इमेज का नेम डॉट जो इमेज का जो फॉर्मेट है वो है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने वो इमेज आपके उस प्रोजेक्ट में होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, राइट। अदरवाइज आपको उसका उस इमेज की आपको पूरी लोकेशन देना होगी जिस भी ड्राइव में है, जिस भी फोल्डर में है वो। तो मैंने ये इमेज को ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। तो उसमें मैंने जो इमेज का नेम है वो है obama.jpg। तो ये सिंटेक्स इमेज को इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। देन हम नेक्स्ट सिंटेक्स पर आते हैं, राइट। अब देखिए
यहाँ पर जो मैंने इमेज इंपोर्ट की हुई है, राइट, वो हमें मेरी कलर्ड इमेज है। अब उस कलर्ड इमेज को मुझे ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना होगा। ग्रे स्केल नथिंग बट अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, राइट। उस इमेज को कन्वर्ट करने की जो सिंटेक्स यूज होता है cv2 डॉट कन्वर्ट, cvt स्टैंड फॉर दिस, cvt स्टैंड फॉर कन्वर्ट, cv2 डॉट cv2 डॉट cvt कलर, देन bgr टू ग्रे। तो ये स्टेटमेंट हमारा सिंपली कन्वर्जन के लिए होता है, कलर्ड इमेज टू ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट सिंटैक्स इज फॉर डिटेक्ट मल्टी स्केल। नाउ this is the most important part of this code. The functionality of this code or the application of this code is that हम इस कोड में क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारी इमेज है, जो भी हमने इमेज को इंपोर्ट किया हुआ है, उस इमेज में जो मेरे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, या जो मेरी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उस पर जो मेरे जो फेस है, फेस की जो मैंने फाइल को भी इंपोर्ट किया हुआ है, उस ओरिजिनल इमेज पर जो रोज एंड कॉलम्स हैं उन पर मार्किंग करना या उन पर स्केलिंग करना, है ना, या वो रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू को सर्च करना जिन पर मेरा फेस एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट पर हम बेसिकली अपने फेस को सर्च कर रहे हैं, जिसके लिए हमने स्केलिंग फैक्टर यूज किया हुआ है। स्केलिंग फैक्टर, ये स्केलिंग फैक्टर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक्यूरेसी फिर हमारी उसमें पुअर हो जाती है। 1.1 इज इनफ एंड दिस द मिनिमम नेबर्स 5। सर एक क्वेश्चन है सर यहाँ। हाँ सर जो आप ये रो एंड कॉलम की बात कर रहे हैं, सर मुझे कैसा पता चलेगा कि कितनी रो एंड कितने कॉलम है अपने फेस में, मुझे किस पर मुझे जाना है? यस यस, गुड क्वेश्चन। मैं ये वेट ही कर रहा था कि ये क्वेश्चन कौन पूछता है, तो इसके लिए मैं इस कोड को थोड़ा सा डिसेबल करूंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर हैश इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इनको, ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे अब, राइट। तो भी मैं कर देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ से समझिए आप, या मैं एक काम करता हूँ, इसको कोड को थोड़ी देर के लिए मैंने डिलीट कर दिया है। अब देखिए कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो अभी हम देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि नमपाई में कन्वर्ट कैसे होगा ये, ठीक है। यस सर। इंपोर्ट cv देखिए यहाँ पर मैंने क्या एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इमेज img। यस सर। इमेज को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ cv2 imread। अब मैं इमेज वही ले लेता हूँ जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में ली हुई थी। डॉट jpg, राइट। ये मैंने एक इमेज इंपोर्ट की हुई है। अब मैं यहाँ पर मुझे देखना है कि ये जो मैंने इमेज को इंपोर्ट किया हुआ है, और इसके पहले स्लाइड्स में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी इमेज है वो कन्वर्ट होती है नमपाई में, नमपाई एंड डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट होती है वो। यहाँ से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम जाएंगे इमेज पर और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पर आप नीचे वाली स्क्रीन पर आप देखें, नीचे वाले विंडो पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कुछ मैट्रिक्स मिल रही है मुझे ना। ये मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ नमपाई अरे और नमपाई एंड डायमेंशनल अरे, एंड दिस मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में हमारी नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं।
सर ये तभी आएगा ना जब हमारा numpy लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड होगा पहले से ही। नो 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 नो, एक्चुअली CV2 जब हम इंपोर्ट करते हैं ना तो उसमें भी इसकी फंक्शनलिटी होती है, और इसको यदि कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है ना, कभी कभी कोड रन नहीं होता, तो हम numpy भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें ना, जो ओके अगर ये कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके जो हम जैसे हमने ओपन सीवी को इंस्टॉल किया हुआ था वहां पर हम numpy लिख देंगे सीधा ना, ओके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर कोड रन नहीं होता है तो ना, अगर कोई एरर आता है तब हम ओके सर। तो यहाँ से हमारा वेरीफाई हो जाता है कि जो हमने इसकी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि हमारी जो इमेज है वो डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स या numpy एरे में कन्वर्ट होता है। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है या फाइंड करना है कि इस numpy एरे में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो उसको हमें देखने के लिए एक और कमांड है, हमको सिंपल इस पर जाना है प्रिंट, और यहाँ पर एक जो हमारा वेरिएबल है जिसमें हमारी इमेज इंपोर्ट की हुई है img.shape, अब आप यहाँ पर देखिए लास्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंप्यूटर में मुझे मिल रहा है 1137 910 राइट। तो ये मेरे जो है नंबर ऑफ रोज हैं जो 1137 दिस इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ रोज, एंड 910 दिस इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड 3 simply stand for there are 3 frames or there are 3 channels or there are 3 matrix और RGB। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो मैंने इमेज इंपोर्ट की हुई है ये मेरी कलर्ड इमेज है और इसमें 1137 रोज हैं, 910 कॉलम्स हैं। अब यदि मुझे इस इमेज को कन्वर्ट करना है ना, कभी कभी आप अपने एप्लीकेशन या जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि आपको कुछ डिले मिले, तो उसको रिड्यूस करने के लिए या एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करने के लिए इसमें जो कोडिंग होती है उसका टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर इसको शेप भी कन्वर्ट करते हैं ना। शेप को कन्वर्ट करने के लिए भी इसमें कमांड होती है, एक हम नया वेरिएबल दे देंगे img2 इज इक्वल टू resize कॉमा जो मेरा इमेज होगा इमेज कॉमा 200। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इमेज हो, जो मैं इमेज को कन्वर्ट करूँ उसमें 200 रोज हों और 200 कॉलम्स हों, राइट। यहाँ पर cv2.resize, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगेन इसको प्रिंट करूंगा, अब मैं प्रिंट करूंगा जो मेरा नया वेरिएबल है ना image2 img2 डॉट shape। Now you can observe that the first image which we have import whose number of rows and number of columns, and the image which we have converted into 200 rows and 200 columns and having 3 channels or having 3 frames। तो इस तरीके से हम अपनी जो भी इमेज इंपोर्ट की हुई है उस इमेज को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं एज पर आर प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो इस कोड को मैं रिमूव करूंगा, देन अगेन मैं वापस कोड पर जाऊंगा जो मेरा ओरिजिनल कोड था। सर ये जरूरी है क्या कि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको? ये आप पर डिपेंड करता है। जनरली जो एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें एक्सएमएल फाइल दी हुई है, राइट, उसमें जो क्या बोलते हैं, जो फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो रेक्टेंगल वो यूज करते हैं ना, आप स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं और उसके एक्यूरेसी आपकी इफेक्ट हो सकती है फिर, है ना। नहीं मैं सर कह रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स हमने लिया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कन्वर्ट किया है।
स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना किया है ना, उसको? इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये तो नंपाई एरे है ना, ये एक रॉ डेटा है ना। अब आप इस रॉ डेटा में इसकी इंफॉर्मेशन से आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि ओके, तो आपकी ये कंपलसरी है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनानी पड़ेगी? नहीं, ये कंपलसरी कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगी। इस मैट्रिक्स से आप इस मैट्रिक्स का यूज करके आप क्या क्या आगे जो भी लाइब्रेरीज हैं हाँ जी। उनको इस डेटा से आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, राइट। ये रॉ डेटा ओके है ना, इसमें ओके इसमें इसमें इमेज की सारी इंफॉर्मेशन है। डिफरेंट, देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी इमेज है, वो इमेज जो है उसमें आपके इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी लेवल पर इसमें असाइन किया जाता है डेसिमल नंबर को 0 से 255 तक, है ना। यस सर। तो अब फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर उस इमेज की ब्राइटनेस की जो इंटेंसिटी होगी, राइट, ब्राइटनेस की जो इंटेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पर जो भी डेसिमल नंबर है वो हमें सिंपल यहाँ पर मिल जाता है। अब उस नंबर से आप क्या क्रिएट करोगे या किस लाइब्रेरी से इंटीग्रेट करोगे वो आप पर डिपेंड करता है, राइट। ओके सर, ओके तो ओके। ये एक रॉ डेटा है ना, ये नंपाई एन डायमेंशनल एरे है। आप किसी भी टूल पर जाएंगे तो वहाँ पर जैसे मैटप्लॉटलिब है ना, यस सर। मैटप्लॉटलिब भी एंड नंपाई एरे ही उसको चाहिए होता है ना इनपुट में। ओके सर, ओके ओके। तो ये हमारा हो जाता है। इस पर हम जाते हैं, वापस हम कोड पर आते हैं, जो हमारा कोड था। तो यहाँ पर हमने स्केलिंग पर हम थे, स्केलिंग हम कर लेते हैं। स्केलिंग के बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमें स्केलिंग कर लिए हमने हमारी ओरिजिनल इमेज पर फेस जो हमें डिटेक्ट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने सर्च कर लिए हैं। अब सर्च तो कर लिए हैं, लेकिन अब आपको आउटपुट में कैसे पता चलेगा ना, आउटपुट में आप उसको कैसे इंडिकेट करेंगे। तो इंडिकेट करने के लिए आपको एक मार्किंग करना होगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हम एक रेक्टेंगल प्लॉट करेंगे जिस भी एरिया में फेस होगा, उस इमेज में जिस भी एरिया में फेस होगा वहां पर हम रेक्टेंगल प्लॉट करेंगे। तो उस रेक्टेंगल को प्लॉट करने के लिए एक इस प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है, हम यहाँ पर एक फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप के लिए हमने 4 वेरिएबल लिए हुए हैं, एक्स वाई डब्ल्यू एच इन फेसेस। मतलब यहाँ पर जो फेस जो वेरिएबल है जहाँ पर हमने हमारे फेस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड सर्च कर लिया है, उस पर हमने इस फॉर लूप को हम लगाते हैं। उस फॉर लूप को लगाने के बाद यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल फंक्शनलिटी को यूज करते हैं, cb2 डॉट रेक्टेंगल टू प्लॉट द रेक्टेंगल एक्स वाई कॉमा simply these are 2 variables, and for complete complete plot of a rectangle there is a width and height will also use, and last one is जो आपका रेक्टेंगल होगा वो किस कलर का रखना है ना, ये भी आप यहाँ से चूज करते हैं। सिंपली 3 स्टैंड फॉर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल लाइन। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है कि 1,255,0 ही क्यों। यहाँ पर हम और भी कुछ भी तो ले सकते थे, राइट। यहाँ पर हम 0 भी ले सकते थे, या तीनों को हम 255 भी कर सकते थे। तो ये इसकी वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आप सभी ने एक टूल यूज किया होगा, पेंट, जो जनरली हर ओएस में होता है। तो वहां से आप इसकी आरजीबी की वैल्यू, ये नथिंग बट आरजीबी वैल्यू ना, आरजीबी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल पेंट पर जाके। देखिए ये मैंने पेंट खोला हुआ है, इस पर आप जाएंगे, एडिट कलर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आरजीबी की वैल्यूज आ रही है ना 75। यदि यहाँ पर मैं टाइप कर दूं 0 और उसको मैं कर देता हूँ 255, ये जो भी हमको वैल्यू लेना है, सॉरी यहाँ पर आ नहीं रहा है, इसको मैं करता हूँ 0 हेलो 255। हेलो जी मैम। सर एक क्वेश्चन था कि अपन ने पहले कोडिंग में कन्वर्ट किया ना ब्लैक एंड वाइट फोटो में, उसे कलर से ब्लैक एंड वाइट जी कन्वर्ट किया मैम। था, फिर इसका क्या रोल है जो अपन आरजीबी फिर से देख रहे हैं ये तो? नो मैम, ये जो हम एक मिनट में बताता हूँ इसको। यस सर।
ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट है रेक्टेंगल को प्लॉट करने के लिए। किस पर? आईएमजी पर। आईएमजी जो है हमारी ओरिजिनल इमेज है ना? ओके। ये आईएमजी जो है मेरी ओरिजिनल इमेज है, ये इमेज ओरिजिनल जो मैंने इंपोर्ट की हुई है, इस पर मैं रेक्टेंगल को प्लॉट कर रहा हूँ ना, जो फेस होगा उस पर रेक्टेंगल प्लॉट कर रहा हूँ। तो सर नेक्स्ट स्टेप में तो अपन ने उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया था ना? यस, ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया था ताकि मुझे जो फेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सर्च करना था, राइट? ओके ओके है ना? ठीक है। वो तो हमने रिकन्वर्ट तो किया नहीं, पर ये इम्पोज्ड वाली ही लेगी। राइट, वो हमने ये जो दो इंस्ट्रक्शंस आप देख रहे हैं मैम यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड, ये जो दो इंस्ट्रक्शन है इस पर हमने एक तो कन्वर्ट किया कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में, देन उस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज पर हमने जो हमारे फेस के जो कोऑर्डिनेट्स थे, है ना, रोज एंड कॉलम्स की जो वैल्यूज थी उनको मैंने सर्च किया। उनको सर्च करने के बाद मैंने फेस के अंदर प्लॉट कर दिया है, फेस के अंदर उनकी वैल्यू रख दी हुई है। देन उस वैल्यूज को मैंने उस वैल्यू पर मैंने केवल उसका वर्क में ये था कि उसमें हम फेस को आइडेंटिफाई कर सके ना, फेस के कोऑर्डिनेट्स को सर्च कर सके ना। यहाँ पर आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेज पर भी लगा सकते हैं, है ना, वो मैं आगे उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पर यहाँ पर जो हम बेसिकली प्लॉट कर रहे हैं वो हम कल अपने ओरिजिनल इमेज पर कर रहे हैं ना, जो हमने इंपोर्ट की हुई है आईएमजी। तो सर वही अपन ने उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के बाद वापस वो कलर इमेज क्यों ले रहा है, वही पूछ रही थी। नहीं, इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट करना है ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने किया ना, वो मैम ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे आई थिंक, है ना, ये जो तीन जो वैल्यूज हैं, यस सर। इसको बोल रहे हैं आप? नहीं, जैसे अपना फर्स्ट जो स्टेप बाय स्टेप चले तो अपन ने कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया, राइट, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स उसके सर्च कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन उसके बाद वापस से कलर इमेज पे ही जा रहे हैं ना, तो वो कलर इमेज को वैसे वापस कैसे ले रहा है, ये पूछ रही थी मैं। नहीं, कलर इमेज पर हम जा रहे हैं, हमको ब्लैक एंड व्हाइट पे जाना हो तो हम ब्लैक एंड व्हाइट पर भी जा सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, आप वहां से कंफ्यूज हो रहे हैं। कलर इमेज पर मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हम आउटपुट में कलर इमेज देखना चाहते हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखना चाहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट तो हमारी एक मजबूरी हो गई कि हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ा, ताकि एक्यूरेसी एक फैक्टर होता है ब्लैक एंड व्हाइट में ना। ओके ओके सर, है ना, कलर इमेज में एक्यूरेसी इफेक्ट होती है, ब्लैक एंड व्हाइट में एक्यूरेसी इफेक्ट नहीं होती है ना। आई होप क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा ना। जी सर, ओके कंटिन्यू करें। है ना, और यहाँ पर जो हम आरजीबी की जो वैल्यू ले रहे हैं मैम, वो बेसिकली हम जो रेक्टेंगल जो प्लॉट कर रहे हैं ना, उस रेक्टेंगल जो लाइन होगी उस लाइन का कलर हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको जो आरजीबी की वैल्यू है वो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर आपको जो भी सिलेक्ट करना हो। ये हमारे आरजीबी के हमारे वैल्यूज हो जाती हैं, आप किस पर भी जाएंगे तो यहाँ से हमको वो वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको वैल्यूज मिल जाती है ना, 21 22392, ये हमारी आरजीबी की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ से हम सिंपली उस वैल्यू को असाइन कर सकते हैं जो भी जिस भी कलर का हमें रेक्टेंगल चाहिए हो। Excuse me, sir. जी Sir, I think this line is for rectangular box. yes On the image. exactly This line is not for image. This line is for rectangular box on that is on the image. yes, these two parameters basically for rectangle line color and rectangle line width. Yes. Okay so now अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है रिसाइज का है, राइट। अब आउटपुट में आप जो अब आपको हो सकता है कि रिसाइज करना हो, आपकी इमेज काफी बड़ी हो, आपके डेस्कटॉप पर ना आ रही हो, या आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए आप अपनी इमेज को रिसाइज भी कर सकते हैं। ये इस प्रोग्राम का एक एडिशनल फीचर है ना। हमें यदि उसकी इमेज को रिसाइज नहीं करना तो हम नहीं भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि उसका स्टेटमेंट कैसा होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट का मैंने यूज किया हुआ है रिसाइज। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी, आप देख सकते हैं, ओरिजिनल हम इमेज मैंने किस वेरिएबल पर रखी थी, आईएमजी वेरिएबल पर रखी थी, राइट। तो इस पर मैंने जो सिंटेक्स यूज किया हुआ है cv2.resize img ओरिजिनल इमेज,
इंटीजर ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी हम इसमें हम अपनी इमेज को इनलार्ज भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं, तो इंटीजर इसमें यूज होगा। देन 1/2, 1/2 यहाँ ना 1/2, दैट मीन्स हम अपनी इमेज को 1/2 कर रहे हैं ना, उसको उसका साइज डिक्रीज कर रहे हैं। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 4 भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर कोडिंग स्टाइल। नाउ आफ्टर जब हमने इस इमेज को कन्वर्ट कर लिया है, उस इमेज को कन्वर्ट करने के बाद अब हमें प्रिंट करना है ना, क्योंकि फाइनली आउटपुट में एक इमेज चाहिए। उस इमेज में जो भी फेस आपने डिटेक्ट किया है, उस फेस पर आपको एक रेक्टेंगल चाहिए ना, तो उसके लिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन यूज होगा वो cv2.imshow रीसाइज, जिस भी वेरिएबल में वो इमेज रखी हुई है ना। हमारी इमेज किस में थी, img पर थी, फिर उस img का हमने रिसाइज करके एक नया नाम दे दिया रीसाइज। अब हमारा जो नेम है वो हो गया रीसाइज, उसको हमने प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर जो भी आपका आउटपुट में आएगा है ना, जो भी आपकी आउटपुट में इमेज आएगी वो विद इन सेकेंड के लिए आएगी, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स वो डिस्प्ले होगी ओनली ना। तो उसको स्टेबल करने के लिए एक स्टेटमेंट होता है cv2.wait की। यहाँ पर आप उस इमेज को होल्ड कर सकते हैं ना। 0 है, दैट मीन्स जब भी आप कोई प्रेस करेंगे तो वहाँ पर इमेज वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर आप किस टाइमिंग भी असाइन कर सकते हैं, 2000 मिली सेकेंड आपने कर दिया। अब इसको यहाँ पर मैं कोड को रन करता हूँ ना, इनवैलिड सिंटैक्स। हेलो सर, हेलो, रीसाइज करने पे ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो रेक्टेंगल के, वो शिफ्ट वो नहीं इफेक्ट नहीं होंगे? होते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो इफेक्ट नहीं होते हैं। ओके। गुड क्वेश्चन वैसे आपने पूछा। उससे हमारे रिजल्ट पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम्म। ये ओके सर। केवल ऑब्जर्वेशन के लिए है ना, कि हमको यदि अपनी प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करना है या ऑब्जर्व करना है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं साइज को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया है ना। अब देखिए, यदि यहाँ पर मैं वेट फंक्शन का यदि यूज़ नहीं करता, स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करता, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट ये देखिए विद इन सेकेंड के लिए आएगा और वो मिनिमाइज क्लोज हो जाएगा ना। दैट्स वाई यहाँ पर हम वेट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं इमेज को होल्ड करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर यदि आपको कलर इसका चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी रेक्टेंगल इसमें आया हुआ है। सिंपली आप इसकी वैल्यू को यहाँ से चेंज कर दीजिए। इसको यदि मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए ना, जो रेक्टेंगल लाइन है उसका कलर चेंज हो गया है। सिंपली अगर आपको विड्थ चेंज करना हो, विड्थ इंक्रीज करना हो आपको, तो यहाँ से आप विड्थ को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये विड्थ मेरी इंक्रीज हो गई। तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे फेस डिटेक्शन या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कोड का। अब इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी एज पर योर प्रोजेक्ट और एज पर योर एप्लीकेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पर जो हमारा जो कोड का जो फ्लो होगा, वो कोड का फ्लो यही होगा। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है आपको जो ओपन लाइब्रेरी है। देन आपका जो भी टारगेट है कि आपको आई डिटेक्ट करना है या फेस डिटेक्ट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कोड को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि मैं आई को डिटेक्ट करूँ ना। मैं चाहता हूँ कि मैं आई को डिटेक्ट करूँ, मुझे फ्रंट फेस को डिटेक्ट नहीं करना है ना, या कोई भी इमेज को इंपोर्ट करना है मुझे और उसमें आई को डिटेक्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जो XML फाइल इंपोर्ट की हुई थी जिसमें फ्रंट फेस की इंफॉर्मेशन थी या फंक्शनलिटी थी या फीचर थे, उसको मुझे चेंज करना होगा। कैस्केड अंडरस्कोर आई बाय ई।
देखिए अब मैं यहाँ पर देखिए मेरी इमेज है ना जो है काफ़ी स्मॉल आ रही है ना, तो यहाँ पर हमारे रिसाइज इंस्ट्रक्शन की एप्लीकेशन होती है, राइट? क्या आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे हैं ना? तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन होती है, इसको मैं इंटू 2 कर दूंगा। यहाँ पर मैंने इंटू 2 कर दिया है इसको, इससे हमारे रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ना, एक्यूरेसी इससे हमारी इफेक्टेड नहीं होती है। इसकी मैं जो विड्थ है उसको भी कम कर दूंगा। अगेन मैं कोड को कंपाइल करूंगा, ये देखिए। तो इस टाइप से हम इसमें एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं, आई के लिए कर सकते हैं, स्माइल के लिए कर सकते हैं, फ्रंट फेस के लिए कर सकते हैं। तो अभी इस कोड में किसी को डाउट या कुछ पूछना हो, किसी का क्वेश्चन? यस सर। जी बोले। सर मुझे डाउट आ रहा है कि ये तो ठीक है, ये जो आप गिटहब से लाइब्रेरी ले रहे हैं इसके लिए कोड जो ले रहे हैं कि आपको फेस डिटेक्ट करना है या आईज डिटेक्ट करनी है, नोज डिटेक्ट करना है, कुछ भी डिटेक्ट करना है, तो सर क्या ये हम खुद बना नहीं सकते हैं क्या? मतलब ये कोऑर्डिनेट ही तो सेट करने हैं केवल हमें? नहीं, कोऑर्डिनेट आपको सेट करना है, वही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना? हाँ जी। उन लाइब्रेरी को या तो आप इंपोर्ट कर लीजिए, या तो आप पहले उन लाइब्रेरी को बनाइए, है ना? यदि आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो या तो आप उन लाइब्रेरीज को बनाइए, डेवलप कीजिए, देन फिर उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके आप बनाइए। आपको अल्टीमेटली फाइल तो इसमें इंपोर्ट करना होगी, है ना? यदि फॉर एग्जांपल आप इसमें एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो आपको एचटीएमएल में कोडिंग आना चाहिए, है ना? यस सर। है ना? एचटीएमएल में आपसे जब कोडिंग आएगी तब इस आप एक्सएमएल फाइल को आप क्रिएट कर पाएंगे। तब फिर आप पाइथन पर आएंगे, फिर पाइथन की कोडिंग को आप सीखेंगे और फिर इसके एल्गोरिदम को सीखेंगे। तो इससे बेटर है कि जो ऑलरेडी फाइल ओपन सोर्स अवेलेबल है ना, उनको आप यूज करके आप फंडामेंटल्स को समझिए, देन फिर आपके जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है या किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसमें फाइल डेवलप भी कर सकते हैं ना। पर पहले आपको पूरा आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, अल्टीमेटली आपको डेवलप किस एंगल पर, किस फाइल पर आपको डेवलपमेंट करना है ना? ओके सर। तो गिटहब बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि आपको नंबर ऑफ सोर्स कोड वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, है ना? अल्टीमेटली आपको पाइथन आना चाहिए, पाइथन इज मस्ट। उसके सिंटेक्स आना चाहिए जो भी आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। जैसे हमने आप ओपन सीवी यूज किया हो तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने सभी जगह CV2 डॉट, देन जो भी कैस्केड क्लासीफायर है, CV2 कन्वर्ट, CV2 रेक्टेंगल, CV2 रिसाइज, है ना? तो ये सारे जो सिंटेक्स है ये हमारे ओपन सीवी के सिंटेक्स हैं जो मैंने यहाँ पर यूज किए हुए हैं ना। तो डिफरेंट हो जाता है। एक और यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक एप्लीकेशन थी, यदि मुझे अब फेस नहीं देखना है ना, मुझे कैट के फेस को रिकॉग्नाइज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल, मैंने जो फाइल मैंने ये सारी एक्सएमएल फाइल को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट किया हुआ, राइट? यदि आप इस कोड को डेवलप करेंगे आप अपने कंप्यूटर पर, तो या तो आप उन फाइल को उस प्रोजेक्ट पे इंपोर्ट कीजिए, अदरवाइज जो भी लोकेशन है वो लोकेशन आप पूरी वहाँ पर मेंशन कीजिए, है ना? फ्रंटल कैट फेस डॉट XML, ठीक है। इसको मैंने अभी जो मैंने XML फाइल इंपोर्ट की हुई है ना, ये XML फाइल में जो फंक्शनलिटी है वो कैट के फेस की फंक्शनलिटी है ना। तो अगर नंबर ऑफ इमेजेस यदि नंबर ऑफ फेसेस यदि आते हैं एनिमल्स के, तो वहाँ पर जो कैट का जो फेस होगा वो वहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, है ना? जो हमारा कोड होगा वो फेस को रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर इमेज का साइज काफी बड़ा हो गया कि मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा इमेज का साइज है उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा, बाय 2 कर दूंगा। इसको मैंने बाय 2 कर दिया ना, डिवाइडेड बाय 2।
what is happening? I think there is some problem. ओके सो आप समझ तो गए कि इसमें क्या क्या इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसमें कोई किसी को इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो, इसमें कुछ क्वेश्चन हो किसी का? हेलो एनीवन? तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा अभी तक हमने जो इसमें कोड्स देखे हैं वो इमेज पर देखे हैं ना। जो मेरी हमारी इमेज थी उसमें हमने फेस को डिटेक्ट किया, स्माइल को डिटेक्ट किया है ना, आईज को डिटेक्ट किया, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारी इसमें एप्लीकेशन हो जाती हैं। नाउ अभी ये क्वेश्चन किसी ने रेज नहीं किया कि यदि अभी तो मैंने इमेज को इंपोर्ट किया हुआ था, राइट? अब यदि मैं इसको रिप्लेस कर दूं वीडियो से, है ना, अब मुझे वीडियो जो यदि मेरा लैपटॉप है तो लैपटॉप का वेबकैम, उससे यदि मुझे कैप्चर करना है या उस वीडियो पर मुझे फेस को डिटेक्ट करना है, तो मेरी कोडिंग स्टाइल क्या होगी, कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे, और उसके कोड, उसका पाइथन कोड कैसा होगा, है ना, या उसमें कौन कौन सी फाइल्स हमारी यूज होंगी। तो जो हमारा जो नेक्स्ट कोड है वो हम देखेंगे पाइथन कोड फॉर वीडियो एंड वीडियो फेस डिटेक्शंस। सर ये मल्टीपल फोटोज के लिए जो करना हो तो फिर इसमें क्या होगा? एट अ टाइम आप एक ही फोटो पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं ना। यदि मल्टीपल फोटोज हैं तो फिर आपकी वो वीडियो हो गई है ना, क्योंकि मल्टीपल फोटोज और मल्टीपल इमेजेस नथिंग बट अ वीडियो। नहीं ओके ठीक है सर, ओके बात तो ठीक है सर। एट अ टाइम तो आप एक ही करेंगे ना इमेज, है ना। अगर आपकी मल्टीपल इमेजेस भी हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको उन सारी इमेजेस को बना के आपको एक इमेज में कन्वर्ट करना होगा उसको, राइट? ओके, एक जेपीजी फाइल में लेके आना होगा। यस वो आपने देखा होगा कॉलेज कोलाज बनाते हैं, कोलाज, राइट, कोलाज, तो हमको वो करना होगा, है ना। ओके, को कोलाज में अलग अलग फेस डिटेक्शन हो जाएगा, राइट, हो जाएगा बिल्कुल, है ना। ये जो फाइल है हमारी, ये स्टैंडर्ड फाइल है ना, ये मतलब हर कोई इसी फाइल को यूज करता है, चाहे वो ओके उसकी एक्सएमएल फाइल खुद लिखनी पड़ेगी। यस ओके, नहीं, फाइल हमारी यही होगी। इस फाइल में ह्यूमन फ्रंटल फेस के इंफॉर्मेशन और उसके फीचर्स हैं, राइट? ओके, फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज लिया, राइट, आपने कोई इमेज लिया .jpg या जो भी फॉर्मेट है, उस इमेज में 5 ह्यूमन फेसेस हैं, राइट? तो उस इमेज को जब आपने इसमें इंपोर्ट करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा इसी कोड में, तो उन सारे 5 फेसेस पर रेक्टेंगल आपको वो मार्क करके देगा, राइट? आपने अपने मोबाइल पर भी एक एप्लीकेशन देखी होगी, अभी एक न्यू फीचर ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन में आ रहा है कि उसमें फ्रंट कैमरा जब आप करते हैं तो वो फेस डिटेक्ट कर लेता है ना। यदि मोबाइल के सामने टू ह्यूमंस हैं तो वो 2 ह्यूमन पर आप देखते होंगे कि सर्कल उसमें मार्क होता है ना। यस सर, रेक्टेंगल भी आ जाता है। यस तो ये वो हमारा दिस इज सिंपल कोड है ना, राइट? So there's nothing any changes. So the next code is for video. Next code is for video. So what will be the changes? I am just opening the code. इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्या? चेंजेस कर सकते हैं वीडियो के लिए, पर मैं आपको कोड ओपन करके इससे दिखा देता हूँ, हमारा टाइम सेव होगा। ओके ना, ये देखिए ना। नाउ गो टू द कोड। अभी इसके पहले हमने जो कोड देखा वो हमारा था सिंपल इमेज डिटेक्शन और फेस डिटेक्शन और पर डिफरेंट ऑपरेशन। नाउ वी विल स्टडी और वी विल मेक द कोड फॉर वीडियो एंड वीडियो फेस डिटेक्शंस। सो
यदि आपको किसी वीडियो में फेस को डिटेक्ट करना है तो वीडियो व्हाट नथिंग बट आप डिफरेंट ऑफ फ्रेम्स और डिफरेंट ऑफ इमेजेस which is capturing by the camera. So by using some statements which is previously defined, first of all we will import the OpenCV library in our code, and then we will use a variable video is equal to cv2.video capture. The video capture, so simply the functionality as is previous code IMRead, right? जैसे कि हमने इसके पहले कोड में देखा था, हमने जो इंस्ट्रक्शन यूज किया हुआ था इमेज को इंपोर्ट करने के लिए cv2.imread, तो इस कोड में भी हम क्या कर रहे हैं, हम वीडियो को इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, वीडियो को हम कैप्चर कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा वो cv2.video capture, यहाँ पर एक वैल्यू पास करना होगी 0, ये वैल्यू 0 होना चाहिए, अदरवाइज एरर एसोसिएट होता है इसमें, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमको एक कंडीशन लगाना होगी इस कोड में, एक हम ऐसा लूप बनाएंगे, इनफाइनाइट लूप। पर उसको समझने से पहले मैं आपको एक इसकी फंक्शनैलिटी बता दूं। इसको मैंने यहाँ पर किया क्लोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप समझिए, बिल्कुल स्क्रैच से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको इसका वीडियो और वीडियो फेस डिटेक्शन का कोड आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा कि इसकी स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या इसके एल्गोरिदम्स हैं और क्या इसमें लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया हुआ है, वीडियो को कैप्चर किया है। वीडियो को कैप्चर करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वीडियो कैप्चर हुई है नहीं हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर ओपन सीवी यूज की हुई है, तो वो सबसे पहले हमारे इमेज को किसमें कन्वर्ट करेगी, ये भी हमारी नमपाई में कन्वर्ट करेगा ना। इसमें जो ओपन सीवी, ये भी हमारा नमपाई अरे में एंड में कन्वर्ट होगी हमारी इमेज। इसको मैं करूंगा प्रिंट check comma frame is equal to video dot read, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा विद इन सेकेंड के लिए मेरे लैपटॉप का वेबकैम ऑन हुआ, देन ऑफ हो गया। दैट मीन्स इसने एक फ्रेम कैप्चर कर लिया है, एक फ्रेम कैप्चर कर लिया, दैट मीन्स इसने एक इमेज कैप्चर कर ली है ना। इसको मैं कंसोल में भी आपको दिखाता हूँ, आप वहां से देख नहीं पा रहे होंगे। यहाँ से मैं करता हूँ, इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट। देखिए यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज किया हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चेक कॉमा फ्रेम इज इक्वल टू वीडियो डॉट रीड। चेक रिटर्न करेगा हमको जो भी हमने वीडियो कैप्चर की हुई है, ये वीडियो कैप्चर की भी है या नहीं की है, राइट। तो ये हमको रिटर्न देगा लॉजिक, है ना। देन फ्रेम यहाँ पर हमने एक वेरिएबल यूज किया हुआ है। ये फ्रेम हमारा वो वेरिएबल है जिसमें हमारी जो भी फोटो कैप्चर हुई है वीडियो में, जो भी हमारी फर्स्ट फ्रेम जो कैप्चर हुआ है, वो फ्रेम वो इमेज इस फ्रेम के अंदर उसके स्टोर हो जाती है ना। इसको हमको प्रिंट करेंगे, प्रिंट फ्रेम। इसको मैंने प्रिंट किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको नमपाई एरे मिल जाता है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंसोल में आपको नमपाई एरे मिल गया है, राइट। तो अभी आपने 1 फ्रेम कैप्चर किया, लेकिन आप फंक्शनलिटी किसकी यूज कर रहे हैं, वीडियो की। आपको यहाँ पर वीडियो कैप्चर करना है, ना कि आपको एक फ्रेम या आपको एक इमेज, ठीक है। तो आपको अब आप यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि आपको आपने यहाँ पर वीडियो फंक्शनलिटी यूज कर रहे हैं, लेकिन आप कैप्चर अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, एक इमेज या एक फ्रेम। और आपको यदि वीडियो शूट करना है या एक पूरी वीडियो कैप्चर करना है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेम्स चाहिए। नंबर ऑफ फ्रेम्स चाहिए मतलब ये नंबर ऑफ फ्रेम्स स्टॉप नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब आप एक यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप यूज करेंगे जो कि एवरी सेकेंड हर एक न्यू फ्रेम को क्रिएट करे और वो उसको कैप्चर करता जाए ना, और आपको डिस्प्ले में एक वीडियो या वहां पर डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रेम्स में मतलब कि ये होंगे ह्यूमन फेसेस, उतने ये रिटर्न करेगा ना। राइट। जो भी रियल टाइम में वेबकैम में जो भी आपका जो भी सोर्स होगा ना,
तो रियल टाइम में उस कैमरे के सामने जो भी इमेज होगी वो एवरी सेकेंड इस फ्रेम के अंदर स्टोर होगी और वो डिस्प्ले होगी आपको, है ना। अभी यदि टाइमिंग्स भी चेंज कर सकते हैं सर, जैसे आप एवरी सेकेंड बोल रहे हैं तो उसको सेकेंड्स के अलावा भी चेंज कर सकते हैं अपन टाइमिंग, रिटर्न टाइम, फ्रेम्स। हाँ, फ्रेम का रिटर्न टाइम नहीं, जब जैसे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसको भी यदि एग्जीक्यूट करता हूँ ना, ओके, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो अब मेरा विद इन सेकेंड के लिए वेबकैम ऑन हुआ और ऑफ हो गया और उसने ये फ्रेम कैप्चर करके मुझे दे दिया। तो उस समय जो फोटो इमेज कैप्चर हुई तो वो आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ उसको। इसके लिए इंस्ट्रक्शन था, मेरा स्टेटमेंट था cv2 डॉट आई एम शो, किसी इमेज को प्रिंट करने के लिए, है ना। और मैंने कहा कि मेरी जो एक फ्रेम है ना, वीडियो, पूरी वीडियो में एक जो मेरा फर्स्ट फ्रेम है जो कैप्चर हुआ है, उस फ्रेम को मुझे प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। तो ये इसको मैंने किया, ठीक है। एक मिनट, फ्रेम कॉमा, ठीक है, यहाँ पर आया, लेकिन वो इसमें मैंने वेट की नहीं दिया ना, वेट की भी मुझे देना होगा, cv2 डॉट वेट की, है ना, इसको मैंने वेट की दे दिया 0। अब आप देखेंगे, अब देखिए इस कोड में क्या होगा, मैंने फंक्शनलिटी वीडियो कैप्चर की यूज की है, मतलब मेरी वीडियो कैप्चर होगी, पर केवल जैसा वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, है ना, एवरी सेकेंड, पर ये केवल फर्स्ट फ्रेम को ही कैप्चर करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा। हेलो, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, कि वीडियो एक्चुअली वर्क कैसे करता है ना। अब यहाँ पर ये तो सिंगल फ्रेम हुआ, अब मुझे ऐसे नंबर ऑफ फ्रेम चाहिए ईच एंड एवरी सेकेंड, तो मैं अपने कोड में, तब मेरा ये कोड उसके लिए कैपेबल नहीं है कि हर एक सेकेंड के लिए मेरा फ्रेम कैप्चर हो और डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मुझे इस अपने कोड में एक इनफाइनाइट लूप यूज करना होगा। उस इनफाइनाइट लूप को यूज करके मैं वीडियो को कैप्चर कर पाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने इस इंस्ट्रक्शन का तो आप मीनिंग समझ गए होंगे, यहाँ से मैंने वीडियो को इंपोर्ट किया सिंपल। ये जो मेरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, है ना, ये एक मैंने कंडीशन दी हुई है इसमें व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप जब भी आप पाइथन में आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें इसमें इनिशियलाइजेशन होता है, देन लॉजिक होता है, देन हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हमें करना है वो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इसमें लॉजिक मैंने जो दिया हुआ है वो ट्रू दिया हुआ है। ट्रू दैट मीन्स ये लूप कभी एंड नहीं होगा, ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, ये फॉल्स नहीं होगा। देन चेक, जो भी वीडियो कैप्चर हुई है उसको रीड करना है। रीड करने के बाद जो भी फ्रेम, जो भी इसमें फ्रेम्स आ रहे हैं, हर वीडियो में नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे होंगे, जो फ्रेम आ रहे हैं वो हमारे प्रिंट होगा। दैट मीन्स सिंपली हमारा जो इसमें नमपाई है वो प्रिंट होगा। देन cv2.imshow, ये इंस्ट्रक्शन जो है ये आपकी जो भी डिफरेंट फ्रेम्स आ रहे हैं, हर एक सेकेंड जो आपके फ्रेम्स आ रहे हैं वो उनको कैप्चर करके उनको प्रिंट करेगा। अब आप एज्यूम कीजिए डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके आ रहे हैं ईच एंड एवरी सेकेंड, तो नथिंग बट अ वीडियो, तो यहाँ पर आपकी वीडियो प्रिंट हो जाती है ना, आपको डिस्प्ले में वीडियो प्रिंट मिलती है। वेट की आपकी जो डिस्प्ले हो, जो आपका विंडो होगा, है ना, उस विंडो को होल्ड करने के लिए और फिर उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर मैंने लॉजिक दिया हुआ है। जैसे आप एस प्रेस करेंगे तो आपका जो विंडो होगा वो क्लोज हो जाएगा, है ना। देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपकी वीडियो आ रही है इधर पर ना, ये वीडियो, दीज वीडियोस नथिंग बट अ डिफरेंट फ्रेम्स। अब ये जो आपके फ्रेम्स आ रहे हैं इसमें हर एक फ्रेम की अपना नमपाई एरे होगा, एन डायमेंशनल एरे होगा। वो एरे भी आप यहाँ पर विंडो में यहाँ पर देख सकते हैं कंसोल में। तो अब इस जो नमपाई एन डायमेंशनल एरे है
इस एरे में यदि आप किसी पर्टिकुलर डिटेक्शन के यदि आप इसमें एल्गोरिदम आप यूज करके उसको इंटीग्रेट करते हैं तो आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि ये जो वीडियो का जो प्रोग्राम है, इस वीडियो प्रोग्राम में यदि मुझे फेस को डिटेक्ट करना है, राइट, इस वीडियो में यदि मुझे फेस को डिटेक्ट करना है तो इस numpy n डायमेंशनल एरे में मुझे जो फेस की जो इन्फॉर्मेशन है, जो XML फाइल है, उस फाइल को मुझे इसमें इंटीग्रेट करना होगा। और सिमिलरली जो मैंने प्रीवियस कोड में एक्सप्लेन किया था, जो फेस डिटेक्शन का जो कोड था इमेज में, वही कोडिंग स्टाइल हमारी इसमें वही होगी। और हम हमारी जो XML फाइल है वो हम इसमें इंपोर्ट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे n डायमेंशनल एरे होंगे। उस एरे में जो हमारे फेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम सर्च करेंगे और उनको प्रिंट कर देंगे। अभी आपको कोड में शो करूंगा तो आप उससे समझ जाएंगे कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो उसमें प्रॉपर आपको अंडरस्टूड हो पाएंगे। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं कोड को ओपन करूंगा जो सिंपल मेरा वीडियो फेस डिटेक्शन का जो कोड है। इसको मैंने मिनिमाइज किया, ये देखिए। अब आप इस कोड को समझिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, जो मेरी ओपन सीवी लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट किया। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद जो भी मेरा फंक्शनलिटी है ना, जो मुझे डिटेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे फ्रंटल फेस डिटेक्ट करना है, तो फ्रंटल फेस डिटेक्ट करने के लिए मेरी जो फीचर्स फाइल होगी ना, जिसमें इमेज के फीचर्स होंगे, उस फाइल को मुझे इंपोर्ट करना होगा। तो सिमिलरली मैंने फ्रंटल फेस हार कैस्केड फ्रंटल फेस की जो XML फाइल है वो यहाँ पर इंपोर्ट की हुई है। सिमिलरली वीडियो को मुझे कैप्चर करना है तो उसके लिए मैंने स्टेटमेंट यूज किया हुआ cv2.video capture। नाउ यहाँ पर मैंने एक इनफाइनाइट लूप लगाया हुआ है while true। इस स्टेटमेंट में जो भी मैंने वीडियो कैप्चर की है उस वीडियो को मुझे रीड करना है। तो उसके लिए चेक कॉमा फ्रेम इज इक्वल टू वीडियो डॉट रीड। अब उस वीडियो को मैंने रीड कर लिया है। अगेन जो हमने प्रीवियस कोड में समझा था कि हमारी जो भी इमेज होती है उसे हमें ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना होता है, राइट, कलर इमेज को। नाउ इन दिस स्टेटमेंट वी विल कन्वर्ट our color image into grayscale image or convert our color image into our black and white image. Then the next step we will search the coordinates of face coordinates on our original image or video. तो यहाँ पर हम स्केलिंग करते हैं फेस कैस्केड मल्टी स्केलिंग से। स्केलिंग फैक्टर ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर 1.1 लिया हुआ है और नेबर मिनिमम नेबर्स मैंने यहाँ पर 5 लिए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कोड मेरा सेम है ऑलमोस्ट। मैंने जो कोड इसमें बनाया हुआ है वो मैंने इसी स्टाइल में बनाया हुआ है ताकि आप उससे रिलेट कर पाए ना प्रीवियस कोड से। अगेन यहाँ पर मैंने एक लूप लिया हुआ है, फॉर लूप में यहाँ पर लूंगा x y w h सिमिलरली स्टैंड फॉर विड्थ एंड हाइट इन फेसेस। अब यहाँ पर मैंने जो मेरा वीडियो जो डिस्प्ले होगी उस वीडियो में जो रेक्टेंगल प्लॉट होगा उसके कलर इमेज उसकी कलर को मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है और उसकी जो विड्थ होगी लाइन की उसको मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है। देन यहाँ पर मैंने रिसाइज किया हुआ है, यहाँ पर मैंने रिसाइज किया हुआ जो डिस्प्ले मेरी होगी वीडियो उसको मैंने रिसाइज किया। देन अगेन आई एम शो और यहाँ पर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज किया हुआ है ताकि जो मेरी विंडो है उसको मैं एस प्रेस करूंगा तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी, है ना। ये मेरी एक एडिशनल इसका फीचर है। अब देखिए मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ इसको। नाउ आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कोड का फ्लो क्या है और इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा, विंडो विल डिसअपीयर। सर इसको वीडियो की लेंथ अपन कितनी भी रख सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं कि वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग कुछ वेरिएबल्स। वीडियो की लेंथ से मैम समझा नहीं मैम आप क्या बोल रहे हैं। ये रियल टाइम वीडियो मैम, ये रियल टाइम है। जो आपका जो वेबकैम होगा जो भी आपके कंप्यूटर पर लैपटॉप में ओके
उसमें जो रियल टाइम जो प्रेजेंट होगा वो डिस्प्ले होगा इसमें ना, ओके सर, है ओके ना। फाइन। अब देखिए मैम, इसकी एप्लीकेशन कई सारी हो सकती हैं, आप इसको ड्रोन में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है ना, या किसी पर्टिकुलर या अटेंडेंस जो आपने देखा होगा ना, स्मार्ट अटेंडेंस जो डिवाइसेस आते हैं उसमें भी इसकी एप्लीकेशन है ना। रियल टाइम में आपको किसी को डिटेक्ट करना हो, है ना। सर रियल टाइम में जैसे वीडियो अपन रन कराते जा रहा है इनफाइनाइट लूप पे, तो वो उतनी बार रिटर्न करता ये है? कभी बंद नहीं होगा जब तक आपका सिस्टम चालू है, ऑन है, या जब तक ये कोड को कोई स्टॉप नहीं कर रहा है ना, तब तक ये ओके कोड सर, चलता रहेगा ना। ठीक है सर। अगर हमें कोई पर्टिकुलर फेस को ही रिकॉग्नाइज कराना है तो उसके लिए हमको इसकी लाइब्रेरी में चेंज करना होगा। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सर, इज इट क्लियर? हेलो, हेलो सर, इज इट क्लियर? हाँ बोले सर, बोले। सर मैं ये कह रहा था, अगर जैसे हमको किसी पर्टिकुलर फेस को रिकॉग्नाइज करना है तो हमें इसकी XML फाइल में चेंज करना होगा या फिर कोड में? नहीं, XML फाइल में चेंज करना होगा आपको ना, XML फाइल में चेंज करना होगा। और वो कंपैरिजन पर आ जाता है ना वो, क्योंकि आपको कंपेयर करना है किसी पर्टिकुलर इमेज से, तो वहाँ पर इनकोडिंग करना होती है ना, उसके लिए अलग स्टेटमेंट और कोडिंग अलग स्टाइल होती है उसके लिए। सर जैसे जो ऑटोमेटिक चलान वाला सिस्टम जो होता है, नंबर प्लेट ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाती है जी, वेबकैम के थ्रू, कैप्चरिंग हो जाती है हाईवेज पर, तो सर उसमें भी इसी तरह का कुछ यूज होता है या कुछ अलग होता है वो? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली उसमें क्या होता है, जो XML फाइल है ना, ये उन्होंने बनाई हुई है ना, हाँ जी, है ना। ये बेसिकली प्रोजेक्ट होते हैं, ये पर्टिकुलर उस XML फाइल को क्रिएट करना होता है, देन फिर हमें इंपोर्ट करके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम उसमें हाईलाइट कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि बहुत फास्ट गाड़ी चल रही होती है, उस फास्ट में ही वो क्लिक कर लेता है और मतलब काफी बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, ये अभी अपन ने जो स्मॉल कोड बनाया हुआ ना, हाँ जो जी, वीडियो वाला आपने देखा, हाँ जी, तो इसमें भी मूवमेंट कितना ही फास्ट हो, है ना, ये डिटेक्ट कर लेगा ये फेस को ना, ओके ओके ओके, है ना। एक्यूरेसी इफेक्टेड नहीं होती है, एक्यूरेसी तो डिपेंड करती है कि हमारी जो फाइल है ना, जो हमने इंपोर्ट की हुई है, वो कितनी एक्यूरेट है, राइट। ओके सर, ओके, थैंक यू। एनी डाउट? नो सर। I think there is no doubt from any of the participants now. Hello. Yeah, Ankit. Hello. Yeah, ma'am, tell me. I think there is no doubt from any Okay. participant. So one last important, actually मैं वेट कर रहा था कि कोई क्वेश्चन पूछे ये। yes. जैसा कि हमने देखा कि ये सारे जो कोड्स हैं हमने बेसिकली पाइथन पर डेवलप किए हुए हैं। तो इन सभी कोड में आपने देखा होगा कि ये सारे कोड सारे विजिबल हैं, दैट मीन्स ये सारे प्रोजेक्ट हैं, इसमें हम कुछ ऐड करना हो, इसकी फंक्शनलिटी को ऐड करना हो, तो वो सारे हम इसमें कर सकते हैं। पर यदि ये सारे कोड यदि हमको यदि डेवलप किए हुए और हम नहीं चाहते कि कोई अदर पर्सन इनको विजिबल करे या कोई अदर पर्सन इसमें कुछ ऐड करे या कॉपी पेस्ट करे, है ना, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सो उसके लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है, जो भी हमने ये कोड बनाए हुए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हेलो? यस सर, यस सर, यस सर, है ना, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आई डिटेक्ट, फेस डिटेक्ट, राइट, स्माइल डिटेक्ट, है ना। तो ये सारे प्रोजेक्ट फाइल्स है ना, दैट मीन्स ये .py या .python फाइल है ना। अब आपको यदि इन फाइल्स को कन्वर्ट करना है .exe या आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, राइट, इन्हीं फाइल्स की आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होती है। वो प्रोसीजर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारे जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, उसमें एक फंक्शनलिटी आती है
ओपन सेल है ना, मैं आपको इसी में कन्वर्ट करके बताता हूँ। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको उस फोल्डर पर जाना है जहां पर आपकी डॉट पाई या डॉट पाइथन फाइल रखी हुई है। वहां पर आपको शिफ्ट प्लस माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है, दोनों पैरेलली। जब आप दोनों पैरेलली प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, उसमें ओपन पावर शेल विंडोज हेयर लिखा होगा, इसको आपको क्लिक करना है। दैट मीन्स ये पावर सेल एक विंडोज 10 की एक मतलब फंक्शनैलिटी है जिसमें हम, दिस इज नथिंग बट अ कमांड प्रॉम्प्ट, राइट, दिस इज नथिंग बट अ कमांड प्रॉम्प्ट। इसको ये ओपन हो जाता है। इसमें हमको एक कंपाइलर, यहाँ पर हम अपनी फाइल को कंपाइल करेंगे, देन उसके बाद हमको हमारी exe फाइल मिल जाएगी, राइट, जो डायरेक्ट हमारे एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है, इसको हम सेल में दिखाता हूँ ना। यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस टू कन्वर्ट डॉट पाई टू डॉट exe फाइल। What is our step? The step, first of all, we have to go the command prompt and download pip space install space py installer। पाई इंस्टॉलर एक कंपाइलर है जो हमारे पाइथन में यूज होता है टू कन्वर्ट डॉट पाई फाइल टू डॉट exe फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ये इंस्टॉल कर लेंगे हमारे सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट पर, देन फिर हमको पावर सेल पर जाना है। पावर सेल ओपन करने की प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमको सिंपल शिफ्ट प्लस माउस का राइट क्लिक दोनों को पैरेलली प्रेस करना है, देन पावर सेल को ओपन करना है। पावर सेल को ओपन करने के बाद द कमांड विच इज बेसिकली यूज टू कन्वर्ट डॉट पाई फाइल टू डॉट exe फाइल, दिस पाई इंस्टॉलर स्पेस हाइफन वन फाइल स्पेस हाइफन w then space file name dot py, then press enter. So this is a process to convert dot py file to dot exe file and मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ कन्वर्ट करके, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हमको जाना है, py installer हाइफन हाइफन वन फाइल स्पेस हाइफन w स्पेस फाइल नेम। आप कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं, जो भी आपका आपने फाइल नेम दिया हुआ है प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जांपल वीडियो। वीडियो डॉट पाई एंड प्रेस एंटर। सो आप देख रहे होंगे ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, इसमें हमारी जो डॉट पाई फाइल है वो डॉट exe में कन्वर्ट हो जाती है। देन फिर आप इस फाइल को आप किसी को भी दे सकते हैं और उसमें आपका जो प्रोजेक्ट है वो हिडन रहेगा, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जब ये फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो जाती है तो एक उसी लोकेशन पर एक फोल्डर क्रिएट होता है dist। उस फोल्डर के अंदर वो फाइल आप देख सकते हैं डॉट exe, जैसे आप लास्ट में देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है dist /video.exe, है ना। यहाँ पर एक मैसेज भी आ गया कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं उसी फोल्डर को ओपन करूंगा जिस फोल्डर पर मेरी ओरिजिनल फाइल थी, प्रोजेक्ट फाइल थी, ये आप देख सकते हैं। देखिए dist ये एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है, इस फोल्डर को ओपन करना है। ये देखिए अब इस फोल्डर, अब इस फाइल जैसा एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, अब इस फाइल को जैसे मैं ओपन करूंगा तो ये डायरेक्ट रन हो जाएगी, है ना। इसमें यदि कोई एडिट कुछ करना चाहता है या इसके कोड को कॉपी पेस्ट करना चाहता है तो वो इसमें हम नहीं कर सकते हैं। So any doubt regarding
कोडिंग एंड रिगार्डिंग एनी लॉजिक, जो भी हमने आज एक्सपेरिमेंट्स किए, कोड किए पाइथन में, उसमें किसी को कुछ डाउट हो? एनीवन?